And next, I would like to invite Mohammad Afan from grade 4 to say Taqreer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To welcome, we are immensely proud to have been a part of this movement of Chandrayaan-3 mission. I extend my warmest welcome to UKG superstars to perform a skit about Chandrayaan-3. Part of this skit. So let me introduce the students first. What's your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ravin. Are you scientist in ISRO? What's your name? My name is Khawaja Saifullah. Are you working in ISRO? Yes, sir. What's your name? My name is Muhammad Zal. You are also scientist in ISRO. What's your name? My name is Muhammad Junai. You are also a scientist. What's your name? My name is Muhammad Fatin. I am studying in 30B section. You are also a scientist in ISRO. MashaAllah. What's your name? My name is Muhammad Ibrahim. Okay. What's your name? My name is Haidar Ali. Okay. What's your name? My name is Muhammad Osman. Okay. What's your name? My name is Abdul Khader. Okay. What's your name? My name is Muhammad Malik. Okay. What's your name? My name is Muhammad Usman. I'm studying in UKG section. MashaAllah. What's your name? My name is Muhammad Amin Atim. I'm working for ISRO. MashaAllah. What's your name? My name is Muhammad Siddharth. I'm working for ISRO. Okay. What's your name? My name is Muhammad Zainab. I am studying in UKG section. MashaAllah. All these are the scientists in ISRO. Presently they are studying here in Ali Public School. So let's continue. So this is what is planned by ISRO, this scientist team, Chandrayaan Mission 3. Let's have a look. Sound. Okay. Everyone clap and salute for it. Chandrayaan 3 successful landing on the moon established India as part of exclusive club alongside the US, Russia and China. So let's give a big round of applause to the scientists of ISRO and inshallah all our school students. They will also be the part of this Chandrayaan
future missions. So I would like to ask the advantages of Chandrayaan from the students. Okay, can you tell me what's the advantage of this Chandrayaan? Advancement in space technology. Advancement in space technology, mashallah. Inshallah, we participate small mission of Chandrayaan. Great. Inspiration for future generation. Mashallah. We are proud for ISRO. Mashallah. Catalyst for private space sector. Mashallah. I like lunar landing achievement. Mashallah. Leading scientific discovery. Mashallah. It attracts attention from all over the world. Great. It ignites national pride. Mission helps scientists to understand moon formation and evolution. Boosting Mashallah. entry into the moon economy. Okay. It opens doors for new business opportunities. Mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandrayaan mission showcases India's prowess in advanced technology. Mashallah. Let's give a big round of applause to all these junior scientists. Inshallah, surely they will crack into IITs and surely will be the scientists. Let's continue. Next clip. Yes, all scientists. Thank you. Over. Thank you. Thank you sir for your mesmerizing performance. Trained by Nazia ma'am. थैंक करने वाला एक तौबा पर 1000 गुना माफ करने वाला और एक नेकी का 1000 नेकियां लिखने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है. It's our pleasure to call upon the little cuties to perform action song Mercy Like the Rain. आज इस मंजर को देखकर बड़ी खुशी हुई और दिल बाग बाग हो गया, इसलिए कि मुसलमान बेकार जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया। मुसलमान को जितना जिस्म की ज़रूरत है इतना रूह की भी ज़रूरत है, और इस मदरसे में इंशाअल्लाह जिस्म का भी इंतज़ाम किया गया है और रूह का भी इंतज़ाम किया गया है। इस मदरसे में स्कूल अगर जिस्म है तो मदरसा इस स्कूल में, इस इदारे में स्कूल अगर जिस्म है तो मदरसा रूह है। आदमी जिस्म के टुकड़े के बगैर जिंदगी गुजार सकता है, रूह के बगैर कभी जिंदगी गुजार नहीं सकता। अभी एक प्रोग्राम हम देख रहे थे, जिस प्रोग्राम में वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा की एक नात पीछे चल रही थी और तलबा उस पर एक्शन कर रहे थे। तो मेरे बाजू हमारे मदरसे के मुफ्ती साहब बैठकर उन्होंने एक जुमला मुझसे कहा कि मौलाना पूरी जिंदगी के वास्ते इन बच्चों के दिलों में ये बात बैठ जाएगी
आप गौर करें कि बहुत सारे स्कूल्स हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन उन स्कूलों में गानों के साथ, म्यूजिक के साथ और पता नहीं और क्या क्या चीजें दाखिल कर कर बच्चों का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम में जो है अल्लाह और रसूल दाखिल किया गया है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे ये बच्चे, जहाँ पर मुसलमानों को उलमा की ज़रूरत है, वहाँ पर दीनदार डॉक्टरों की भी मुसलमानों को ज़रूरत है। जहाँ पर मुसलमानों को दीगर चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पर दीनदार लॉयर्स की ज़रूरत है। आज मुसलमान ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर कैसे हालात हैं। इन हालात में हमारे वास्ते ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे इंजीनियर्स और ऐसे लॉयर्स और ऐसे प्रोफेसर्स की जरूरत है जो दीन के साथ असरी उलूम हासिल कर चुके हों और उम्मत की रहबरी कर रहे हों। आखिर में मैं आप हजरात से एक बात कहूंगा, जहां भी स्कूल में मुझे बात करने का जो है मौका मिलता है, मैं वहां पर ये बात जरूर करता हूं। आपसे एक गुजारिश करता हूं, माँ बाप से एक गुजारिश करता हूं। वो गुजारिश ये कि हम अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाते हैं, नीयत ये होती है कि मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के बाद कुछ पैसा कमाएगा। शुरू से नीयत में फुतूर है। अब वो बच्चे को हमने बहुत कुछ उसके जहन में बात डाली कि बेटा तो इंजीनियर बनेगा, तो ये करेगा और ये करेगा और तेरे पास बंगला होगा, कार होगी, मोटर होगी, गाड़ी होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। अब वो बच्चा दरमियान में जो है किसी वजह से ड्रॉप आउट हुआ तो वो बच्चा मायूसी का शिकार हो जाता है। अगर शुरू से बच्चों के दिलों के अंदर ये बात बिठाई जाती कि बेटा तू पढ़ने के बाद लोगों की इंसानियत की खिदमत करेगा, दुनिया वालों की खिदमत करेगा, तो मुल्क की खिदमत करेगा, तो दीन की खिदमत करेगा, तो हर वो किस्म का काम करेगा जिससे इंसानों को, जिससे जानवरों को फायदा पहुंचे, तो फिर वो बच्चा खादिम बनेगा। अगर हमने ये सोचकर बच्चों की तरबियत की कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद अच्छे खासे पैसे कमा कर लाएगा, तो फिर वो बच्चा खादिम नहीं बनेगा, वक्त का डाकू और वक्त का चोर बनेगा। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में मरीजों पर रहम नहीं किया जाता और लायर्स अपने क्लाइंटों पर रहम नहीं करते, इसी तरीके से बहुत सारी फील्ड्स आप मुझसे बेहतर जानते हैं जहां पर पैसों के लिए बैठकर लोगों को लूटा जाता है। अगर आप माँ बाप, पेरेंट्स और खुसूसियत के साथ वालिद साहिबान और वालिदा साहिबा, मैं गुजारिश करता हूं कि आज आप नीयत लेकर जाएं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी तो इंशाअल्लाह मुल्क की खादिम बनाऊंगी और मैं दीन के खादिम बनाऊंगी, मैं इंसानियत के खिदमत गुजार बनाऊंगी। अगर मौका पड़े जानवरों की खिदमत करना पड़े तो इंशाअल्लाह मैं जानवरों की खिदमत मैं अपने बच्चों से कराऊंगी। इस नीयत से यहाँ से उठकर जाए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, आपका बच्चा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनेगा, इसलिए कि उन्होंने दीन भी हासिल किया था, उन्होंने असरी उलूम भी हासिल किए थे और उन्होंने खिदमतें भी की थी और जहां पर उन्होंने इबादतें की हैं वहां पर खिदमतें भी की हैं। ये चंद बातें मेरी तरफ से आप हजरात से गुजारिश है। आखिर में एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी बात को खत्म करूं। वो मिसाल ये कि अक्सर खेड़ों में, करियों में जो गाय खरीदी जाती है, वो गाय इस नियत से खरीदी जाती है कि इससे मैं दूध हासिल करूंगा। कितना बेवकूफ आदमी होगा जो गाय इसलिए खरीद रहा है कि उससे गोबर हासिल किया जाए। ये स्कूल्स, ये मदरसे, ये कॉलेजेस, ये दूध देने की गाय है, यहाँ पर दूध मिलता है। यहाँ जो है खिदमत गुजारों की नीयत लेकर अपने बच्चों को डालें। यहाँ से अगर गोबर हासिल करने की कोशिश हुई कि उससे बड़ा बेवकूफ जो है आदमी दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि ये खिदमत करने की जगह है और खिदमत करवाने वालों की यहाँ खिदमत करवाना सिखाया जाता है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप दूध के लिए गाय खरीदें, यहाँ पढ़ाएं तो
आपकी नीयत ये हो कि मेरा बच्चा जो है खिदमत गुजार बने, आप गोबर के पीछे ना जाएं, गोबर फ्री में आकर रहेगा। जब दूध के लिए आप गाय खरीदेंगे, गोबर आकर रहेगा। गोबर की भी कीमत कम नहीं है, गोबर की भी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप खिदमत के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, इंशाअल्लाह खुद ब खुद उसकी बरकत से पैसे भी आपको मिलेंगे, आपके बच्चे मालदार भी होंगे, इंसान भी बनेंगे और इंशाअल्लाह उनका जिस्म भी दुरुस्त होगा, उनकी रूह भी दुरुस्त होगी। ये चंद बातें मेरी तरफ से आप हजरात के लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस इदारे को ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। और खुसूसियत के साथ मैं यहाँ के स्टाफ हजरात असातिज़ा, टीचर्स और हमारे मैनेजमेंट जो हजरात इस इदारे को चला रहे हैं, जनाब असलम साहब, हाजी असलम साहब, अब्दुर्रहमान साहब और दीगर ट्रस्टी हजरात और जितने इस मदरसे की और स्कूल की फिक्र करते हैं, तमाम को अल्लाह ताला के यहाँ दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबको आबाद फरमाए, इसका पूरा बदला आपकी नस्लों को नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इसे ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। अमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको The rain is falling down, mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the rain is falling down, mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Showing us the greatness of Allah, blossoming flowers bearing fruits, showing us the greatness of Allah, of Allah. Mercy like the rain is falling down, mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the rain falling down, mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the faith that shines within us, mercy like the prayers that Allah answers, mercy like the faith that shines within us, mercy like the prayers that Allah answers. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise, paradise. Mercy like the rain is falling down, mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the rain is falling down, mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the smile for one another, mercy like the kindness for each other, mercy like the smile for one another, mercy like the kindness for each other. Oh, how it takes sadness from our hearts, spreading God's love through
In this world is prettier than a Muslimah who dresses to please Allah. The beauty is on her iman instead of her face. With this beautiful quote, I would like to welcome Sheba Sadia for taqreer about hijab. الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़िज़ सामा इकराम असातिज़ा और मेरे प्यारे माओं बहनों मेरे साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाहर निकलो तो चेहरे पर हिजाब हो, बाहर निकलो तो चेहरे पर हिजाब हो और लहजा इतना तुल्ख हो जैसे तेजाब हो। आज मेरी तकरीर का उन्वान है पर्दे की अहमियत। पर्दा क्या है? पर्दा एक ऐसी अनमोल और नायाब चीज़ है जिसे इस्लाम में औरत पर फर्ज कर दिया गया है ताकि वो अपनी जीनत की हिफाजत करे और बिला वजह अपने घरों के बाहर ना निकले और बिलखुसूस गैर मर्द के सामने अपने आप को बेपर्दा जाहिर ना करे। तेरे घर की चौखट ही तेरे सर की चादर है, तेरे घर की चौखट ही तेरे सर की चादर है। सुनो ऐ लड़कियों, नादानियाँ अच्छी नहीं होती। इस्लाम में पर्दा औरत की शान है, इस्लाम में पर्दा औरत की पहचान है और सबसे बढ़कर मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद फरमाया कि पर्दे वाली औरतों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया गया है। क्योंकि जब औरत पर्दा करती है तो अल्लाह की राह में महफूज होती है। पर्दे के बारे में इरशाद फरमाते हुए मेरे आका हम सब के प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का पर्दा करना शहीद का कौन सा अफजल है। अल्लाह अकबर। पर्दा करो क्योंकि तुम वो उन कनीज़ों में से हो जिनके लिए महशर में भी ऐलान किया जाएगा कि ऐ सब अपनी नजरें झुका ले क्योंकि फातिमा बिन्ते मोहम्मद यहाँ से गुजरेंगी। पर्दा उतारने के लिए बहुत सी दलीलें होगी लेकिन उसको पहनने के लिए सिर्फ एक ही दलील है कि वो हुक्म रब्बी है। अब बेहतरीन पर्दा क्या है? बेहतरीन पर्दा वो है जिसे नहीं बेहतरीन पर्दा चलो मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ जिससे आपको मालूम होगा कि सबसे बेहतरीन पर्दा क्या है। चुनांचे एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीबी फातिमा ज़हरा से अर्ज़ करने लगे कि ऐ फातिमा सबसे बेहतरीन पर्दा कौन सा है? तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन पर्दा वो है जिसमें ना कोई गैर मर्द उस औरत को देखे ना वो औरत कोई गैर मर्द को देखे। पर्दा सिर्फ औरत पर ही लाजिम नहीं है बल्कि मर्द पर भी लाजिम है। आजकल की औरतें अफसोस नऊज़ु बिल्लाह पर्दे के नाम पर फैशन कर रही है, पर्दे पर बेपर्दा होते जा रही है और कुछ तो पर्दा करके भी अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। अस्तग़फिरुल्लाह। अपने जिस्म की नुमाइश करना कितना बड़ा अज़ाब है। जैसे तंग बुर्का पहनकर बुर्के में फैशन कर कर। सुनो ऐ नादानो पर्दे को अपने ऊपर लपेटने का हुक्म नहीं बल्कि अपने ऊपर ढांपने का दिया गया है। जुस्तजू है गुनाहों की लोग सवाब से डरते हैं, जुस्तजू है गुनाहों की लोग सवाब से डरते हैं। अफसोस कि आज बिनते हवा हिजाब से डरते हैं। पहले शर्म से पर्दा किया जाता था और पर्दे करने से शर्म आती है। याद रखो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। पर्दे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने रब की रजा के लिए क्या करो। पर्दा करना तो बहुत बड़ी कीमत है क्योंकि वो अनमोल और नायाब चीज़ों पर होता है। जैसे कुरान मजीद अल्लाह ताला की अजीम किताब उस पर भी पर्दा होता है। हमारे क़िबला काबतुल्लाह शरीफ पर भी गिलाफ होता है और सबसे बढ़कर मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात भी पर्दे में छुपी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप पर मुनहसर है कि आप अपने आप को
पर्दा करके अनमोल और नायाब बनाना चाहती है, या फिर जैसे बेपर्दा होकर जिसे हर कोई अपने नज़र से मर्जी से देखे। अल्लाह हम सबको पर्दा करने की तौफीक दे और हम सबको सैयदा ताहिरा तय्यबा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज़ों में शामिल फरमाए और अज़ाब जहन्नम से बचाए। नऊज़ु बिल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दाना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। Let's give a big Thank you Shuyeba Sadia for your such a courageous performance. बरसती बारिश चमकते सितारे कह रहे हैं वही खुदा है। With this thought I would like to call first standard first to perform बरसती बारिश।
आप भी प्रोग्राम गया तो स्पीच करके निकल जाते स्टेज प्रोग्राम। आज अल्लाह का फजल समझ रहा हूँ, ऐसा प्रोग्राम देखने का मौका मिला और ये बच्चों का प्रोग्राम देख के इतनी दिल में खुशी हो रही है। मैं टाइम देखते छूँ, अब आधा घंटा छोड़ कर निकल जाएंगे, 6:30 बजे निकल जाएंगे समझा, फिर 7:30 बजे निकल जाएंगे। अगर पोस्टपोन कर ले कुछ लास्ट डिसाइड कर लिया 9:15 बजे निकल जाना कर सोचा था, 9:15 बजे भी हो गया, अभी भी दिल नहीं हो रहा कि निकलना यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। स्कूल मैनेजमेंट वालों को, टीचर्स को स्पेशली, और बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी। पहली बार इतना देर बैठा हूँ मैं प्रोग्राम में, मैं कभी भी नहीं बैठता था। मैं बहुत खुशी हो रही मुझे, देखो बच्चे ऐसा फील हो रहा हर एक परफॉर्मेंस के बाद के एक जुम्मा का ये बयान जो सुनती तब माइंड कितना रिफ्रेश होता, या फिर इस्तेमा को जागो है तो माइंड कैसा रिफ्रेश होता, मुझे वैसा फीलिंग हो जा रहा है। मेरे को एनुअल डे में ऐसा फीलिंग रहता क्या करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही। बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं 2 चंद बातें करके मैं बात खत्म कर देता हूँ। एक दो जस्ट जो रियल स्टोरी सो मैं आपको सुनाता हूँ ताकि हमें भी समझना कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। जुलाई 7, 1991 में आंध्र प्रदेश में एक छोटे से हरिये में फार्मर्स, जो विलेज फार्मर्स रहते हैं, एग्रीकल्चर करती है, उनके घर में एक बच्चा पैदा होता। बच्चा पैदा हुआ तो हमेशा घर में क्या खुशी का माहौल रहता, बट उस घर में खुशी का माहौल नहीं था। सब लोग आके बोले ये बच्चा कुछ भी फायदे का नहीं है, ये बच्चे को जान से मार दो। लोगों को बोले कि वो बोलेगा तो बच्चा अंधा था। बच्चा जो बच्चा पैदा हुआ था अंधा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं देख रहा था, आंखें भी नहीं खुल रही थी। लेकिन पेरेंट्स बोले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम बच्चे को नहीं मारेंगे, बच्चे को इंशाल्लाह उसकी परवरिश करेंगे। क्योंकि ज़िराती थे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, वो बच्चे को लेके जा रहे थे उनके अब्बा एग्रीकल्चर। तो उस दिन उनके वालिद डिसाइड करे इस बच्चे को हम इल्म देंगे, एजुकेशन दे डालेंगे बच्चे को। घर को डिसाइड करे, वो बच्चे को स्कूल को जमाती, वो बच्चा एजुकेशन हासिल करता। SSLC में 92% मार्क्स निकालता बच्चा, जो अंधा बच्चा था। वो बच्चे को फिर पढ़ने की ख्वाहिश होती, PUC को साइंस में जमनागर को कोशिश करता बच्चा हो, वो बच्चे को कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता। तो बच्चा क्या करता, लास्ट में कोर्ट में केस डालता कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने का मौका देना दो। तो कोर्ट बोलता, जज बोलती ठीक है बेटा तुम पढ़ लो, फेल हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, हम ना बोलना नहीं करको बोलती। तो बच्चा क्या करता, चैलेंज लेकर पढ़कर, जो अंधा बच्चा है PUC में साइंस में 98% मार्क्स निकालता बच्चा, 98% निकाल के फिर इंजीनियरिंग को पूरे जो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर, ये जो अंधा बच्चा था वो निकालकर वहाँ पे पढ़ाई करता, इंजीनियरिंग कंप्लीट भी करता। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो बच्चे को बहुत सारी कंपनियों से काम के लेटर्स आती, काम के वास्ते आओ करको। वो बच्चा बोलता, अमेरिका में पढ़ा सो बच्चा हो जाता इंजीनियरिंग। वो बच्चा बोलता उस दिन, वो नौजवान, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो मजबूर हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए मैं मदद करता हूँ। मैं किसी कंपनी को काम नहीं करता, करो वापस आके इंडिया को बेंगलुरु में और हैदराबाद में एक कंपनी स्टार्ट करती, बोलैंड इंडस्ट्रीज बोल के, जिस कंपनी में जो हैंडीकैप्ड हैं, जो गरीबा हैं, जो तकलीफ हैं, उनको ही काम देते हैं वहाँ। तो वो कंपनी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, इस इंसान के बारे में, श्रीकांत बोल्ला इनका नाम है, जो है गूगल में चेक कर सकते हैं, श्रीकांत बोल्ला। 2018 ईस्वी में जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, 50 करोड़ रुपए की आमदनी ऑलरेडी थी इस कंपनी की। तो आप समझिए
एक अंधा बच्चा जिसको सब लोग मार दो ये वेस्ट है, ये कुछ भी फायदा का नहीं करके बोले थे, वो बच्चा कितना बड़ा इंसान बनकर दिखाया। आप अगर सोचेंगे और से क्या था उस बच्चे में जो इतनी बड़ी मंजिल तक लेके गया, तो एजुकेशन दिए पेरेंट्स, वालिदैन एजुकेशन देने का उसको फैसला लिए, तो एजुकेशन बच्चे को जिंदगी पूरी बदल डाला। ये एक श्रीकांत बुल्ला की कहानी थी। ऐसे ही बहुत सारे हैं। और एक है अंसार शेख, इंडिया के यंगेस्ट IAS ऑफिसर अंसार शेख, महाराष्ट्र के। अंसार शेख जब प्राइमरी स्कूल में थे, उनके वालिद क्या करती, स्कूल से निकाल देती, होटल में काम को जम ले बेटा, क्लीनर का काम को जम ले, पढ़ने का नको कर को बोल देती। लेकिन अंसार शेख के टीचर्स वो बच्चे का टैलेंट समझकर वालिदैन को समझाती, नहीं बच्चे को पढ़ाओ, आप बच्चे को स्कूल से नको छोड़ाओ कर। तो अंसार शेख पढ़कर जाकर आगे जाकर इंडिया के यंगेस्ट IAS ऑफिसर बनती। तो यहाँ पे भी वालिदैन का यही अहम रोल था कि बच्चे को एजुकेशन दिए, बच्चे को काम से नहीं निकाले, एजुकेशन से नहीं निकाले। तो इस वजह से मैं दरखास्त करता हूँ, मैं एक ऑब्जर्व करूँ कॉमन के, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में बच्चों को एजुकेशन से ड्रॉप आउट कर देती, जल्दी बहुत जल्दी ड्रॉप आउट कर देती है। SSLC होते ही छोड़ा देती, 100 रुपये कमाने को आया, 50 रुपये कमाने को आया तो बस करती। ऐसी एक जहनीत से हमें निकलना बाहर, लॉन्ग टर्म सोचना, हमें दूर का सोचना, बच्चों को तालीम देना, तब जाकर बच्चे अच्छा इंशाल्लाह इल्म हासिल कर सक्सेस हासिल करते। मेरी बात खत्म करते हुए बस एक चाइनीज के फिलोसोफर की एक बात कहना चाहता हूँ, कन्फ्यूशियस इनका नाम है। उन्होंने एक बात बोलती, इफ योर प्लान इज फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, अगर आपका प्लान सिर्फ 1 साल का है तो चावल को पिकाओ बस। इफ योर प्लान इज फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज करो, अगर आपका प्लान 10 साल का है तो बहुत सारे झाड़ों को ये करो, तुम्हें प्लांट ट्रीज करके बोलते। इफ योर प्लान इज फॉर 100 ईयर्स देन एजुकेट योर चिल्ड्रन करके बोलते। अगर आपका प्लान 100 साल का है, अगर आप बहुत तरक्की करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए। तो इसी मकसद के साथ अली पब्लिक स्कूल और अनस बिन मालिक मदरसे भी यही मेहनत कर रहे हैं। मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मकसद को कामयाबी अता फरमाए। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। लेट्स गिव उसको नाकर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। With Allah all things are possible. By this saying, I would like to call precious gems of second standard to perform खुदा तो वो है। To Asma ma'am for assisting them. I'd like to call Sayyid Safrain for Quran competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Safrain Ahmad. I am studying in 4th standard B section. Today, I want to show how our children memorize Quran. I tell an ayat letter and he recognize the ayat letter and state the ayah. Let's go Safrain. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif. إن مع العسر يسرا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. ترميهم بحجارة من سجيل. ثم أدبر يسعى. جيم جزاء وفاقا. حتى زرتم المقابر. خلق الإنسان من علق. دحورا ولهم عذاب واصب. ذو العرش المجيد.
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا سبح اسم ربك الأعلى شأن يغني صاد صحف إبراهيم وموسى ضاحكة مستبشرة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم فيرجعون علمت نفس ما قدمت وأخرت غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبأي آلاء ربكما تكذبان قد أفلح من تزكى كلا بل تكذبون بالدين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم متاع لكم ولأنعامكم نار الله الموقدة وأما من خفت موازينه هل أتاك حديث الجنود فإذا كنا عظاما نخرة لا يسقون من ظهير مخطوط يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه جزاك الله خيرا السلام. MashaAllah. Give a big round of applause to Master Sakleen and Hafiza Lulu Huda Baji. So that is a great relationship of this Masi and son. So generally we may see like the people asking this on movie songs and all. They may play Antakshari. So the best of the Antakshari is like from Alif to Ya. They can say the sentence of Quran, MashaAllah. Let's give a big round of applause. Thank you, Safalai. It was very good and mesmerizing performance. Let's see their performance. Let's hear the speech from them. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. My name is Zoya Khan. I am studying 7th standard. My dear brothers and sisters, how are you all doing today? That's really wonderful. I would like to thank Ali English House Academy and Ali Public School for giving me an opportunity to develop my personality. Today I am going to say Surah Al-Fatiha with meaning, which means opening chapter of the Quran. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises to Allah, Lord of the worlds. Ar-Rahmanir-Rahim. The entirely merciful, the specially merciful. Maliki Yawmiddin. Honor of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only to you we worship and only from you we ask for help.
اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom you have bestowed favor, not of those who have strayed. Thank you very much for listening to me patiently. Enjoy your evening. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. My name is Zaid Khan. I am studying in 3rd standard B section. Ladies and gentlemen, are you looking for the admission for your child in the best school? Are you looking for the Islamic environment for your child? Ali Public School and Ali PU College are the best choices. We have very good faculties, smart classrooms, well-equipped labs and best learning system powered by lead. We have our own Ali English House Academy training us to speak on French. So what are you waiting for? Get the admission of your child immediately. Admission are open for the next year. I would like to thank Ali Public School for giving me an opportunity to develop my personality. Thank you for listening to me. Jazakallahu khair. Enjoy your evening. Thank you. Jazakallahu khair. Let's give a big round of applause. Let's continue with the next program. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "As-salatu imaduddin," which means namaz is the pillar of salah. Namaz deen ka sutoon hai. By this wonderful thought, I would like to call Sweet Spice of 1st standard to perform a skit on namaz ki ahmiyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. भाई मनज का स्कोर क्या है? 5 ओवर बाकी थे और 3 रन बनाने थे. अगर आना छोड़ लेते तो पूरा मैच देखने को मिलता. क्या मैंने सुना क्या इंडिया हार गई है? नहीं नहीं, इंडिया नहीं हारी. इंडिया जरूर जीतेगी. मैं नमाज के बाद बहुत दुआ करूंगा. बेटा मस्जिद में आकर ऐसा बात नहीं करता. बेटा ये कैसे कपड़े पहन के आए हो? अच्छा, आपको क्या मालूम? ये आजकल का फैशन है. आजकल के बच्चों के नाम अल्लाह तुम सबको हिदायत दे. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shadu an la
नमाज में गाना गा रहा हूँ, ये जरूर शैतान की जड़ होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इल्ला बन्नतम। सीधे के लिए दिखाई नहीं देते, मैं आराम से कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिदों की हालात। मस्जिद तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का घर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें 5 वक्त नमाज के जरिए अपने परेशानियों और हाजतों को सामने रखने की सलाहियत दी है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों के ज़हन को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनके अंदर नमाज की अहमियत बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। बुलंदी रखना निगाह अपनी, वक़ार अपना, शअबूर अपना। बुलंदी रखना निगाह अपनी, वक़ार अपना, शअबूर अपना। ना डगमगाए कदम तुम्हारे, कुछ ऐसे रखना किरदार अपना। With this wonderful thought, I would like to welcome much flowers from 8th, 9th, 10th and PUC girls to perform शेरों के कबीले की।
कटाकट्टी है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, बेटियां उम्मते मुस्लिमा की कभी पर्दा न छोड़ेंगी। कुछ लोग दौलत पर नाज करते हैं, कुछ लोग दौलत पर नाज करते हैं, तो कुछ लोग शोहरत पर नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो उम्मती होने पर नाज करते हैं। I would like to invite our senior shining stars of our school to rock the stage.
अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी क़ायदा ख़त्म करके उधर हमारे इस सुपर 40 में आए, नाजिरा मुकम्मल ख़त्म किया चंद बच्चियों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 पारा 1.5 पारा हिफ्ज़ भी कर लिया है 4 से 5 महीने के अंदर। बकिया बच्चियां भी हैं जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह 15-20 पारे बच्चियों के हो चुके हैं, इंशाअल्लाह उनका भी बहुत जल्द कुरान मजीद नाजिरा मुकम्मल होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बच्चियां ये बच्चे ज़रूर भी ज़रूर 6-7 तक इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ और हाफिज़ा बन जाएंगे। हमारी मुकम्मल कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन भी इसका मुकम्मल साथ दे रहे हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। उसकी एक हल्की सी झलक यहाँ हम दिखा रहे हैं। जो बच्चे और बच्चियाँ 1 पारा 1.5 पारा, बाज़ बच्चे 3 पारे भी किए हैं, लिहाजा 1-2 सवाल मुख्तसर से वक्त में सवालात किए जाएंगे। आप बच्चों के पढ़ने के अंदाज़ को देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह बच्चों ने मेहनत की है। सुबह फजर के फ़ौरन बाद बच्चियां आ जाते हैं और शाम में 8 बजे घर को जाते हैं। लिहाजा आप क़िरात को मत देखिए, हिफ्ज़ को देखिए, किस तरह हिफ्ज़ तजवीद के साथ किस तरह उन्होंने मेहनत की है। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में ये काम निपटा दिया जाएगा। मुख्तसर से सवालात किए जाएंगे, बच्चे मुकम्मल तैयार रहें। सुमैरा फातिमा सूरतुल मुजादला शुरू से पढ़। एक मिनट बेटा, सारे बच्चे एक मर्तबा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अलग अलग से पढ़ेंगे तो उसमें वक्त ज़्यादा होगा। सारे बच्चे बैक वक्त एक ही मर्तबा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें। सूरतुल मुजादलति मदनिय्यह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور। दूसरा सवाल, फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा। فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. अलीम सादिया सूरह मुरसलात पढ़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्मुरसलाति उर्फा फलआसिफाति अस्फा वन्नाशिराति नशरा फलफारिकाति फरका फलमुल्कियाति ज़िक्रा उज़ुरन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ। दूसरा सवाल, इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله। इन्न
فهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. कौन सी सूरत है? सूरत القلم. सूरत अन्नाज़ियात पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन्नाज़िआत मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा। दूसरा सवाल सूरत तीन पढ़ो। सूरतुत्तीन मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द। काफी। सूरत अबस पढ़ो। सूरत अबस मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस वतवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु الذिक्रा अम्मा मन इस्तग़ना। सूरत शम्स पढ़ो। सूरत الشمس मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। सूरत तकवीर पढ़ो। सूरत तकवीर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्स कुव्विरत वइज़ा नुजूमु कदरत वइज़ा जिबालु सुय्यरत वइज़ा इशारु उत्तिलत वइज़ा उहूशु हुशिरत वइज़ा बिहारु सुज्जिरत। दूसरा सवाल फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. इसी सूरत सूरत الملك. सूरत الحاقة मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. कौन सा पारा है? تبارك الذي. सूरत नबा पढ़ो। सूरत النبأ मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। माइशा फातिमा। सूरतुल मुल्क पढ़ो। सूरतुल मुल्क मक्की
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة العلق पढ़ो. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. آمين. سورة الانشقاق पढ़ो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الانشقاق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. سورة الانفطار पढ़ो. سورة الانفطار مكية. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. زوبيا. سورة الأعلى पढ़ो. بسم الله الرحمن الرحيم नहीं करीब करो. سورة الأعلى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. दूसरा सवाल सूरत البلد पढ़ो. سورة البلد مكية. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. عبد الرحمن. سورة الطارق पढ़ो. سورة الطارق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. दूसरा सूरत القارعة पढ़ो. سورة القارعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
गाशिया पढ़ो। सूरतुल गाशियति मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अताका हदीसुल गाशियह वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह। सूरतुल बुरूज पढ़ो। सूरतुल बुरूज मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद। ज़ोया फ़ातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फज्र मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। गाशिया पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल गाशियति मक्किय्यह हल अताका हदीसुल गाशियह वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह। बस बेटा, ये थे सुपर 40 के मासूम बच्चे जो अभी 4th और 5th में पढ़ रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन बच्चों को, इन बच्चियों को हाफिज़ और हाफिज़ा बनाए, जयीद हाफिज़ा बनाए। लिहाजा ये इन्होंने मुझे पारा सुनाया, एक भी गलती के बगैर इन्होंने पारा सुनाया है और मैंने इनसे कहा कि 20 दिन में अगर पारा ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह सबको इनाम मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों में ये बच्चे तबारकल्लज़ी आधे के करीब कर लिए हैं अक्सर बच्चे। लिहाजा आप तमाम हजरात इन बच्चियों के लिए दुआ फरमाएं। एक बच्चे से, एक मर्द से एक फ़र्द बनता है, एक औरत से सारा घराना बनता है। लिहाजा ये बच्चियां अगर यहाँ से हाफिज़ा बनकर जाएंगी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारे घराने इंशाअल्लाह बन जाएंगे। सारे मोहल्लों में, सारे घरानों में इंशाअल्लाह दीन आम हो जाएगा। सारे बच्चे बच्चियां कुरान मजीद पढ़ने वाले बन जाएंगे। लिहाजा तमाम हजरात इन बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ फरमाएं। अब नाज़िरे के बच्चे हैं, हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब उनका इम्तिहान लेंगे। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सामिईन इकराम और बच्चों के पेरेंट्स, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का दिन है, बड़ी मसरत का दिन है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं ये कुरान पाक ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे मदरसे में तलबा हिफ्ज़ करके सबक सुनाते हैं, आमुख्ता सुनाते हैं, सबक पारा सुनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है, ये उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये उलमा ही पहचानते हैं, इसलिए कि हीरे को जो परखता है वो जौहरी है, जो हीरे को परखता है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। आम आदमी को अगर हीरा दे देंगे तो समझता है कि ये कांच का टुकड़ा होगा, उसे जब ये अगर जौहरी देख लेगा तो पत्थर को देखकर समझ लेता है कि ये हीरा है। इसको तराशने के बाद इसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। तो ये कुरान पाक जो छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हम उलमा जानते हैं कि इनकी वैल्यू, इनकी कदर क्या है। और मैं मुबारकबादी देता हूँ कि इस स्कूल और मदरसे के मैनेजमेंट हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीदुर रहमान साहब हैं, जो मोहतमीम साहब हैं, और इसी तरह इस मदरसे के, इस स्कूल के सदर साहब जनाब अब्दुर रहमान साहब और सेक्रेटरी
हाजी मिर्ज़ा असलम पाशा साहब, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए, इतना बड़ा काम कर दिए हैं कि आप सोचें कि अगर एक बच्ची कुरान पढ़ती है, आपको तो आप जानते हैं कि आम तौर पर बच्चियां जब शादी करके लिए दूसरे गाँवों को लड़कियां चले जाती हैं, अगर वो कुरान पाक सही पढ़ने वाली है तो सबसे पहला काम वो है कि बच्चों को अपने महल्ले में कुरान पढ़ाना चाहती है। हर औरत, हम देखे हैं अपने गाँव में, इधर तो सब देखे हैं, कुरान पाक कौन पढ़ा रहे हैं? फुला आपा पढ़ाते हैं, फुला आपा पढ़ाते हैं, फुला आपा पढ़ा। कब से पढ़ा रहे हैं? 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, 25 साल से पढ़े हैं। कितने बच्चे पढ़े हैं? पता नहीं, सैकड़ों बच्चे उनके पास पढ़ लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये बच्चियाँ अगर कुरान पाक सही तजवीज़ से पढ़कर यहाँ से जा रहे हैं, ये जिस गांव में जाएंगे, जिस महल्ले में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, तो पूरा ख़ानदान नहीं, पूरे गांव को इंशाल्लाह संभालेंगे, पूरे गांव के बच्चों का कुरान सही करेंगे। इसलिए कि जैसा उनके सीनों में कुरान डाला गया, ये ऐसा ही अपने बच्चों को आप सिखाएंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ पर एक बच्ची नहीं बल्कि एक गाँव यहाँ पर बैठा हुआ है जो सैकड़ों बच्चों का कुरान सही करने के लिए फ़ौज तैयार हो रही है। तो साथ साथ अंग्रेज़ी तालीम, ये दुनियावी लाइन से भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और दुनियावी तालीम हासिल करके दीन और दुनिया दोनों में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह इन जिम्मेदारों को जज़ा खैर अता फरमाए और इनके टीचर्स को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अब देखिए, ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, ये 3rd, 4th और 5th, ये 3 क्लासेस के तालिबात हैं। ये सिर्फ 4 महीने के अरसे में 18 पारे नाज़िरा इन्होंने मुकम्मल किया। मामूली बात है? अंदाज़ा सोचिए, 4 महीने के अरसे में नाज़िरा पाक अलिफ लाम से लेकर पीछे की एक मंजिल हुई है और सामने के इधर से 13 पारे इनके हुए हैं। तो 18 पारे इन्होंने 4 महीने में मुकम्मल किए। अब आइंदा महीना इंशाअल्लाह बस 12-13 पारे बचे हुए हैं, वो मुकम्मल करके ये जो बच्चे हिस्से जो इम्तिहान दिए हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह ये भी इम्तिहान देने वाले बनेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जितने लड़के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अल्लाह तमाम को हुफ़ाज़ बनाए और इसका जितने उनके पीछे आने वाली क्लासेस हैं, और अल्लाह ताला तमाम को भी हुफ़ाज़ बनाए और दीन और दुनिया दोनों में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर नाज़िरे के तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि वो सूरह ज़ारियात खोलें। सूरह ज़ारियात एक आवाज़ में ताअवुज़ और तस्मिया पढ़कर सूरह ज़ारियात पढ़ें।
माशाअल्लाह, अल्लाह इन तालिबात को जज़ाए खैर अता फरमाए। बेटा वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, ऊपर है ना पहली लाइन सफ़े के शुरू में, वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, इसमें क्या इजरा है? खैदे एक आवाज़ में तरतीब वार, ये खैदा में नहीं छूटना, एक आवाज़ में पढ़ना, आगे पीछे नहीं होना। अलिफ लाम के बाद हुर्फ़े शम्सी में से शीन है, यह हुर्फ़े शम्सी का फ़ायदा है। यहाँ पर अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा सीन के ऊपर तज़दीद है। तज़दीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद से। तज़दीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा इसी करीने में है और अरबी शक्ल में है। ये मद्दे मुत्तसिल मद्दे वाले का फ़ायदा है। यहाँ पर 2 या 4 अलिफ की मिक़दार की निगाह करना चाहिए। हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा का फ़ायदा है। यहाँ पर एक अलिफ की मिक़दार की निगाह करना चाहिए। अलिफ लाम के बाद हुर्फ़े ख़फ़ी में से हा है, यह हुर्फ़े ख़फ़ी का फ़ायदा है। यहाँ पर सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना चाहिए। जेर पर वक़्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ का जज़म देकर सांस छोड़े। माशाअल्लाह, आपने सुना होगा कि ये बस कुरान पढ़ते नहीं हैं बल्कि जितने कवायद हैं सारे कवायद ये जानकर पढ़ते हैं कि कौन सा कहाँ फ़ायदा है, किसी का कौन सा, अमरी का कौन सा, और ये जितने कवायद हैं सारे कवायद को मद्देनज़र रखते हुए ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर कुरान पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदे याद नहीं होते कि यहाँ पर कौन सा है, कैसा पढ़ना है, वो याद नहीं होता। लेकिन ये बच्चों को इजरा यानी कवायद के साथ कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। अल्लाह तबारक तआला इनके पढ़ने को कबूल फरमाए। मोहम्मद दानिश जहाँ कहीं भी तशरीफ़ लाए। बात है और हमारे लिए खुशी की बात भी है कि जामिया सैयदना अनस इब्न मालिक का ये तालिब इल्म मुसाबका बेंगलुरु में एक मुसाबका हुआ तो वहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया और 5वें कामयाबी हासिल की। 5वें नंबर पर आना भी कोई मामूली बात नहीं है। वक्त के बड़े बड़े तलबा वहाँ पर होते हैं, जय्यद हुफ़ाज़ वहाँ पर होते हैं, उसमें 5वें नंबर पर आना ये हमने की बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सैयदना अनस इब्न मालिक जो मदरसे में हिफ्ज़ की तालीम चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा मुसाबका जो वहाँ पर होता है, मुसाबका तो नहीं बस मुजाहरे के तौर मुसाबका के लिए वक्त चाहिए। मैं कुरान पाक जहाँ जहाँ से मैं पूछता हूँ इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि पढ़ेंगे। हाँ बेटा, सूरतुल माइदा पढ़। ये सूरत पारा नंबर 6 मंजिल नंबर 2 सूरतुल माइदा। इसमें 12 रुकू हैं, इसमें 16 रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वला الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد
القواعد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. बस माशाअल्लाह. वो आटा को पढ़ो. सवाल पारा नंबर 10 मंजिल नंबर 3 मंजिल नंबर 2 रुकू नंबर 16 से 5 पारे से के दरमियान से सवाल किया गया. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. बस माशाअल्लाह. अल्लाह मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की याद में सियारत हम नहीं करते, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते. Now I would like to invite 9 girls to rock the stage. For your wonderful performance. We are heartful, Aisha ma'am, to assist them. सफर में कांटे होते हैं, राह में फूल उस्ताद बिछाते हैं, सबको तहजीब व अखलाक देते हैं, हमको इंसान उस्ताद बनाते हैं. By this wonderful saying, I would like to call shining stars of 10th standard to perform Asatiza Se Pyar Hai. कलम भी हाथ में लिखना सिखाया आपने, कलम भी हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल थी सामने रास्ता दिखाया आपने. हम तो बस पुतले थे, शऊर देकर इंसान बनाया आपने. असातिज़ा से प्यार है, असातिज़ा से प्यार है, असातिज़ा से प्यार